Students, as we are studying biological classification and we know that all living organisms are kept in any of the five kingdoms, means living organisms are classified into five kingdoms given by Whittaker. And now we have studied up to three kingdoms, that is Monera, Protista and Fungi. Today we will study about the kingdom Plantae. Plantae, as the name is indicating here, all living organisms which are called as plants are kept in the kingdom Plantae. And if we study the characteristics of the kingdom Plantae, these are eukaryotic, means the plant cells are well developed and they have chlorophyll in them. Chlorophyll is present in the chloroplast which helps in photosynthesis. Means most of the plants are autotrophs, but a few members of the kingdom Plantae may be heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. अगर हम parasites की बात करें, then plant parasite is Cuscuta. Cuscuta is a plant parasite. It grows on the body of a plant, and what it does, it takes food from that plant. So it is a parasite here. Whereas insectivorous plants like bladderwort and Venus flytrap, these are insectivorous plants. These grow in the soil which is deficient in nitrogen. So to fulfill that need, they have modified their leaves in the form of some vessels, so that whenever the insects visit these plants, they trap that insect. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि most of the plants are autotrophs, but there are some exceptions where the organisms belonging to kingdom Plantae are heterotrophic. एग्जाम्पल में हमने बात किया, अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडरवॉर्ट, इनमें क्या होगा, ये उस सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है. उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं. और इसी तरह से कुस्कुटा, जो कि एक प्लांट पैरासाइट है, दूसरे प्लांट की बॉडी पर ग्रो करता है. Cells are eukaryotic, chloroplast is present and they have a cell wall also. Cell wall is made of cellulose, and what is the function of this cell wall? It protects the plant cell in adverse conditions. And if we talk about the life cycle of plants, तो लाइफ साइकिल जो प्लांट की है उसको हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक. मीन्स जो प्लांट बॉडी है वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होंगे, लेकिन जब वो प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. और ये दोनों ही जनरेशन्स अल्टरनेशन शो करती हैं. मीन्स डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, उन्होंने गैमेट्स बनाए हैप्लॉयड गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और सीड्स बन जाएंगे डिप्लॉयड. और इस तरह से जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है प्लांट किंगडम शो करता है, जो कि हम डिटेल में इस चैप्टर में इनके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यू आर एबल टू सी लॉट ऑफ प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स. ऑल दीज बिलोंग टू किंगडम Plantae, and this kingdom is divided into divisions and classes. So we will study in this 11th class, we will study about the Thallophyta, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms. These are the divisions of kingdom Plantae about which we are going to study in our next chapter. These were the characteristics of kingdom Plantae. Now kingdom Animalia, most complex जो kingdom है वो किंगडम एनिमलिया है. यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. देयर सेल्स आर वेल डेवलप्ड, मीन्स द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक and they have many cells in their body, so they are multicellular, but the cells of the animal body do not have any cell wall and they depend for their food on the plants. And they have an internal well developed digestive system. The food is digested inside the body and that is converted into glycogen or fat. यानी कि जब फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सेल्स ने यूटिलाइज कर लिया, जो एक्स्ट्रा फूड है दैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स. अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वी हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक.
What is Holozoic mode of nutrition? Whenever an organism takes solid food inside its body and the digestion or breakdown of food, उस कॉम्प्लेक्स फूड का जो ब्रेक डाउन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइफ ग्रोथ पैटर्न, वी सी दैट ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बर्थ के बाद जो है डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद वो एडल्ट, और एडल्ट के बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल किंगडम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर वेल डेवलप्ड, एंड देयर इज़ न्यूरोमोटर मैकेनिज्म ऑल्सो. मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी है जो बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एबल टू मूव, मीन्स दे शो लोकोमोशन. सो दीज आर द 5 किंगडम्स जिनमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा है. क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन की, उसने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में रख दिया. बट वॉट वॉज देयर वर सम ऑर्गेनिजम्स विच वर नॉट केप्ट इन एनी ऑफ द किंगडम. और वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स. इनको जो है कोई भी अपने रॉबर्ट विटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी कोई प्लेस नहीं दिया. सो व्हाट आर वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स? वायरसेस जो हैं वो असेलुलर है. देखिए हमने पढ़ा मोनेरा में हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स हैं. फंजाई के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो है वो मल्टी सेलुलर हैं. अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो वो क्या है? यूकैरियोटिक हैं बट यूनिसेलुलर है. यानी हम क्या देख रहे थे कि सेल्स प्रेजेंट हैं मोनेरा से लेकर के और किंगडम एनिमलिया तक, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक. बट इन वायरसेस जो है उनकी बॉडी के पास कोई सेल नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? असेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. और अगर इनकी बॉडी को देखा जाए तो इनकी बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ क्रिस्टल्स नज़र आते हैं. अगर वो बाहर कहीं भी आउटसाइड द लिविंग है, किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो सिर्फ क्या होंगे? दे विल बी इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. लेकिन जब ये वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर उसकी सेल की मशीनरी को अडॉप्ट करके और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं. उस होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, उस होस्ट की सेल्स को किल कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देमसेल्स. एंड दैट्स वाई वायरसेस आर केप्ट एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग. ना तो वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है. व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर बिहेविंग एज नॉन लिविंग, एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर बिहेविंग एज living. So they are at the border of living and non-living. In actual viruses means venom or poisonous fluid, मतलब कोई लिक्विड जो कि पॉइजनस है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया वायरसेस. सबसे पहले ये वर्ड दिया किसने? पैश्चर ने. उसके बाद DJ एंड वेस्की ने क्या किया? कुछ ऐसे माइक्रोब्स को देखा जो कि टोबैको के प्लांट के अंदर मोज़ाइक डिजीज़ को कॉज कर रहे थे. और उन्होंने क्या देखा कि जो ये ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रोब्स हैं जो कि टोबैको प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया से स्मॉलर हैं. कैसे पता चला बैक्टीरिया से स्मॉलर हैं? उनके पास जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स थे, और उसने क्या देखा कि जब उन माइक्रोब्स को उन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से पास किया गया तो वो उसमें से गुजर गए. मीन्स कि दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज. देन M.W. बेजरनिक, उन्होंने क्या किया? इन ऑर्गेनिजम्स, इन माइक्रोब्स से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, और जब उन लिक्विड को हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया गया तो क्या व्हाट वाज ऑब्जर्व कि जो लिक्विड था इट वाज कॉजिंग इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स ऑल्सो. यानी कि इनके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड है जो कि क्या कर रहा है? डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है. देन स्टेनली केम एंड व्हाट ही प्रूव दैट दीज वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड. हम इन वायरसेस को क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर सकते, इनके क्रिस्टल जो इनका लिक्विड है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और इन एक्चुअल ये क्रिस्टल क्या थे? क्रिस्टल्स जो थे वो देवर ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स.
and these proteins were inert outside the host cell. जब इनको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिल रही थी, they were not reactive, proteins were not reactive, but when they entered in the body of living organism, जो proteins थे, they become active. And when we talk about the genetic material of these viruses, जो viruses हैं, they may have DNA और RNA. इनके पास प्रोटीन्स के अलावा आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हो सकता है. अगर किसी वायरस की बात करें, वायरस जो है प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं एंड एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं. वो वायरसेस जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए एंड दैट आरएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड. सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि एक ही स्ट्रैंड है, उसका एक ही लेयर है. और वो वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और अगर उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, देन दैट आरएनए में बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड. बट इफ़ द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए, देन दैट डीएनए विल बी डबल स्ट्रैंडेड इन एनिमल्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है. एंड इफ़ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्रोटीन्स, जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में था, तो ये प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर. अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसके अंदर जिसको हमने कैप्सिड कहा है, और ये कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है जिसे हमने बोला है कैप्सोमेयर. दिस डायग्राम इज शोन ऑन पेज नंबर 26 इन NCERT. So capsomeres are present, and these viruses cause disease in plants also, in animals also, and even in human beings. If we talk about the diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza, these are the diseases caused by viruses. AIDS जो disease है in human beings, ये भी viruses cause करते हैं. And in plants they cause the leaf rolling and curling. येलोइंग ऑफ लीव्स में टेक प्लेस. वेन्स में डिसअपियर. वेन्स होती हैं जो लीव्स के सेंटर में से पास होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं. ड्वार्फिंग, प्लांट का ग्रोथ नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ रह जाता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीजेज कॉज्ड बाय दीज वायरसेस इन प्लांट्स. Then there is one more category, that is viroids. What are viroids? In 1971, Theo Diner discovered that there are some organisms which are smaller than viruses. वायरसेस से भी छोटे उसने कुछ माइक्रोब्स को देखा, और वो माइक्रोब्स क्या कर रहे थे, डिजीज़ कॉज कर रहे थे. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है उसके अंदर डिजीज़ कॉज कर रहे थे. एंड दे वर स्मॉलर देन वायरसेस, तो इनको नाम क्या दिया गया, वायरॉइड्स. अब इनमें क्या डिफरेंस है वायरसेस और वायरॉइड्स के अंदर, कि जो वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट प्रेजेंट थी, ये वायरॉइड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थी. और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल था, दैट वाज आरएनए, एंड दिस आरएनए इज़ ऑफ लो मोलिकुलर वेट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स. मीन्स स्मॉलर देन वायरसेस and only RNA is present, and that is of low molecular weight and there is no protein coat. Then lichens. Lichens show symbiotic association. In actual, it is an association between algae and fungi where two organisms live together and both are benefited. जो algae का part है, that is called as phycobiont, और जो fungi का part है उसे हम बोलते हैं mycobiont. हम क्या देखते हैं कि जो फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट दोनों ही इकट्ठे रहेंगे. इसमें से जो एल्गी पार्ट है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, इट कैन प्रिपेयर फूड. वेयर एज जो फंगल पार्ट है वो हेटेरोट्रॉफिक है. व्हाट द एल्गी विल डू, एल्गी विल प्रिपेयर फूड, एंड व्हाट द फंजाई विल डू, इट विल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी. सो व्हेन एल्गी विल प्रिपेयर द फूड, दिस फूड इज shared by both the alga also and both by the fungi also. This kind of association is called as mutualism. Mutualism means where two organisms are living together and both are benefited. So we have completed here our chapter 2, biological classification. I think all of you have completed the question answers of chapter 1. So you write down those questions in your fair notebook and send me photos of those answers on my personal WhatsApp number. Thank you.